Good morning, students. Today we will start exercise 7.3 of chapter 7 integration, right? Find first question, find the integrals of the following function. First question is sin square 2x plus 5. We will solve sin square 2x plus 5, है ना? We know that sin square integration we can't do directly integration of sin square x. So we have to apply the formula here. That formula we will apply sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2. That formula we will apply here. In the place of we will write like this integration symbol and dx. ठीक है. Now we will apply the formula 1 minus cos 2x by 2. So 1 minus 1 minus cos, in the place of x we will write 2x plus 5. 2 into 2x plus 5 by 2 dx. ठीक है. Integration of 1 minus cos, when 2 will be multiplied with inside the bracket, then 4x plus 10 by 2 dx. Now we will write separate to all. Integration of 1 by 2 minus integration of cos 4x plus 10 by 2 dx, right? We will write dx also here. So 1 by 2x, 1 by 2 is the constant term, so integration of 1 is x, so it will be x by 2 minus cos integration is sin x, so sin of 4x plus 10 by 4x का 4 and 2 is also there 8 plus c. देखो cos का sin 4x plus 10 और 4x का 4 आएगा बाय में and 2 is already there, so 4 2 सा 8 plus और 10 क्या है 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं आएगा डिफरेंशिएशन, so 4x का 4 वो हमारा डिवाइड में आएगा. So ये हमारा आंसर हो गया. That is the answer of this first question. I hope this question is understand to all, right? Next, second we will do now. What was the question? Sin 3x into cos 4x, right? Question second, sin 3x cos 4x. Now there are two functions cos and sin. We can't do directly the integration of these two functions. So what we will do here, we will apply the identity 2 cos x sin x. है ना? We know that identity of trigonometry 2 cos x sin x. What is the formula of this? Sin a plus b cos x sin x, not sin y. 2 cos x sin y, sin a plus b minus sin a minus b, right? 2 cos a sin b formula is sin x plus y minus sin x minus y. We can write 2 cos x sin y, right? Same formula we will apply like this. We can write na cos 4x sin 3x, right? So first what we will do, we have to multiply and divide by 2 for making the formula that 2 cos x sin y sin x plus y minus sin x minus y. That we will apply here. Sin x plus y means sin 4x plus 3x minus sin 4x minus 3x. By 2 we can take outside this dx symbol we will write here, right? Now sin 4x plus 3x, sin 7x will become, and here sin x will become, right? Now sin 7x is integration of sin 7x minus cos 7x, and 7x का 7 by में 1 by 2 is already outside. Sin x का minus cos x
plus c. So this 1 by 2 will go inside, then cos 7x by 14 plus cos x by 2 plus c. This is the answer of this question. So sin cos sin 3x cos 4x है, आप sin a cos b का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, cos a sin b का फॉर्मूला लगाया। 2 cos a sin b का फॉर्मूला है sin a plus b minus sin a minus b. If you will write xy then sin x plus y minus sin x minus y. ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो फर्स्ट वी नीड द 2 हेयर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला है sin a plus b minus sin a minus b, राइट। तो ये हो गया cos sin 7x एंड sin x। sin 7x का इंटीग्रेशन है माइनस cos 7x और 7x का बाय में 7 आ जाएगा, राइट। एंड दिस sin x इंटीग्रेशन इज माइनस cos x माइनस माइनस प्लस cos x। 1/2 ऑलरेडी हमारे पास था तो वो अंदर मल्टीप्लाई में चला गया। दैट इज अवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड टू ऑल, है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नाउ। cos 2x cos 4x cos 6x, है ना। We have to put this integration symbol and dx also in each and every question, right? Now we will apply we will take one time also 1/2 we have to multiply and divide by 2। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। cos 4x और cos 2x को मैंने एक साइड कर लिया और cos x को एक साइड कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये अप्लाई करेंगे। cos a इज 4x, b इज 2x, तो 1/2 आउटसाइड रहेगा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस b मीन्स cos 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b मीन्स 4x माइनस 2x and cos x is also outside dx, ठीक है। अब 4x प्लस 2x हो गया 6x, ये हो गया cos 6x प्लस cos 2x एंड बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई में है cos x dx। अब ये cos x की दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर रही हूं मैं, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x plus cos 2x multiply cos x, right। 1/2 cos 6x plus cos 2x multiply cos x dx। I think this was there, यही था ना। Yes, cos 6x plus cos 2x multiply cos x dx 1/2 is outside, ठीक है। अब ये cos के अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, cos 6x इंटू cos x हो जाएगा एंड सेम cos x की मल्टीप्लाई cos 2x के साथ भी हो जाएगी, cos x फुल dx वी विल राइट आउटसाइड। अब देखो फिर से 2 की प्रोडक्ट आ गई, cos a cos b, हियर cos a cos b, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b, that is cos a plus b प्लस cos a माइनस b। ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसके लिए हमारे को 2 चाहिए, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 अगेन हियर एंड हियर बोथ साइड, ठीक है। सो 1/2 2/2 cos 6x, cos x मीन्स मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, cos 2x और cos x और पूरे के बाहर है हमारे पास dx, ठीक है। क्यों किया मैंने, बिकॉज मेरे को वो आइडेंटिटी बनानी है, उसके लिए मुझे 2 की नीड है, राइट। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b, 1/2 दोनों में से बाहर ले लेंगे
और 1/2 ऑलरेडी एक बाहर था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। अंदर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a प्लस बी मीन्स cos 7x प्लस cos a माइनस बी मीन्स cos 5x। ठीक है, यहाँ भी 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a प्लस बी मीन्स cos 3x प्लस cos a माइनस बी मीन्स cos x dx। ठीक है, अब हम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं विदाउट एनी पावर, विदाउट मल्टीप्लीकेशन। We can find the easily the integration of this. Right now we will do the integration. So what will come? 1/4. Do the integration. Cos integration is minus sign. So minus sign 7x by 7 है ना? Here minus sign, sorry, cos integration is positive sign, right? Sin integration is minus cos. So sin 5x by 5 plus sin 3x by 3 plus sin x, right, plus c. Now we can take LCM, otherwise we will multiply this 4 inside the bracket, then we will get the answer. That is our answer. If you want to write like this, sin 7x by 7 4s are 28 plus sin 5x by 20 plus sin 3x by 12 plus sin x by 4 plus c. Both are correct. That is our answer. I hope this question understand to all. Yes. देखो क्वेश्चन था हमारे पास cos a, cos b, cos c. 3 cos are given to means इकट्ठे दे रखे हैं तीनों cos, तो 2 को कॉम्बिनेशन में ले लेंगे, 2 को एक साइड 1 को साइड पे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, cos a cos b का तो फॉर्मूला होता ही है, तो हमारे पास आगे 2 चाहिए हमें, सो वी नीड 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 cos a cos b वो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, cos a is 4x and b is 2x, तो 4 plus 2 6x और 4 minus 2 2x आ गया। हमारे पास हो गया cos 6x और cos 2x और बाहर cos x था ही। फिर हमने क्या किया, ये लिख दिया दोबारा से मैंने, फिर 1/2 इस cos के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 6x के साथ cos x हो गया, cos 2x के साथ भी cos x हो गया। फिर अब ये डबल डबल आ गए मल्टीप्लाई में, फिर से हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 cos a cos b। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो बाय वाला 2 था वो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 cos a cos b, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 cos a cos b, cos a प्लस b मतलब cos 6x प्लस x cos 7x और cos 2x प्लस x cos 3x। ठीक है, दिस इज 3x, 2x प्लस x 3x, cos 7x and cos 6x minus x cos 5x, cos 2x into cos x cos 3x, cos 2x minus cos x cos x। ठीक है, देखो 6 plus 1 7, 6 minus 1 5, 2 plus 1 3, 2 minus 1 x, means we will apply this formula cos a plus b plus cos a minus b, again cos a plus b plus cos a minus b, right? Now we can do integration very easily। देखो cos 7x का होता है sin 7x by 7, cos 5x का होता है sin 5x by 5, cos 3x का होता है sin 3x by 3 और cos x का होता है sin x। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सॉल्व मोर, देन दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड टू ऑल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वी विल डू sin cube 2x plus 1। फोर्थ क्वेश्चन है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यस, अब देखो साइन क्यूब एक्स को भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हमें साइन 3x साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ साइन। तो वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वो हम साइन 3x वाले फॉर्मूले से, साइन 3x की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है
उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे। साइन 3x का फॉर्मूला है हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये हमारा साइन 3x का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से हम साइन 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 साइन 3x जो है हमारा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, हमें सिर्फ साइन क्यूब एक्स निकालना है, तो साइन क्यूब एक्स क्या बन जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ठीक है यार, अब हम ये यहाँ अप्लाई करेंगे साइन 3 इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2x + 1। तो पहले तो ये लीनियर अप्लाई करो, क्या आएगा 3/4 साइन इन द प्लेस ऑफ x वी विल अप्लाई 2x + 1 माइनस 1/4 साइन 3 इंटू 2x + 1 dx। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है साइन क्यूब एक्स का 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। सो 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। ठीक है, अब देखो 3/4 साइन 2x + 1 minus 1/4 sin, we first we have to multiply this 6x + 3 dx। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 3/4 कांस्टेंट टर्म है, ये ऐसे कैसे रह जाएगी। साइन 2x + 1 का क्या होता है माइनस कॉस 2x + 1। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और 2x का 2 बाय में आ जाएगा, है ना, माइनस 1/4 साइन का माइनस कोस होता है 6x + 3 आ जाएगा, और 6x का 6 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, और माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/6 4 24 cos 6x + 3 + c। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को, क्योंकि हमने डायरेक्टली क्यूब का नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो वहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल दी, वो 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी 3/4 साइन x। इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2x + 1। ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3 इंटू 2x + 1। अब ये 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6x + 3। नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 3/4 एक कांस्टेंट टर्म है तो वो एज इट इज रह जाएगी। साइन का क्या होता है माइनस कोस 2x + 1 और 2x का 2, सेम साइन का माइनस कोस और 6x का 6 आ जाएगा बाय में। अब 3/4 की मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया -3/8 cos 2x + 1, और ये हो गया 1/24 cos 6x + 3 + c। ये हमारा क्या है आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज sin cube x and cos cube x, right? Sin cube x, question number 5th we are doing now. Sin cube x into cos cube x। यस, अब बताओ कैसे करें। साइन का क्यूब भी आ गया, कॉस का क्यूब भी आ गया। हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो क्यूब लेके इसको बना दे साइन 2x का क्यूब, फिर क्यूब वाला दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर दे, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हमने, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स है और कोस क्यूब एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने और कॉस एक्स लिख दिया। दोनों में से किसी को भी आप ऐसे कर सकते हो। साइन को इस साइड ले लो, कोस को इधर ले लो, कैसे भी कर लो, आप आराम से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। अब देखो कोस को भी मैं साइन में बना लेती हूँ, साइन क्यूब एक्स लिख दिया, कोस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इनटू में कॉस एक्स dx। ठीक है, अब साइन क्यूब की, साइन को अगर मैं पुट कर दूं t, साइन को अगर मैं t पुट कर दूं, पुट या सब्स्टिट्यूट साइन x इज इक्वल टू t
आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, है ना. sin x differentiation is cos x and x differentiation is dx and t differentiation is dt. तो cos x dx जो है वो हमारा बन गया dt, राइट. ये हो गया t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वेयर dt. ठीक है. अब इस t क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t क्यूब माइनस टी रेज टू द पावर 5 dt हो गया, है ना. अब इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम. टी क्यूब का इंटीग्रेशन 1 पावर इंक्रीज होती है और जो इंक्रीज होती है वही बाय में आती है, तो टी की 4/4 हो जाएगा और इसका टी की 6/6 हो जाएगा, प्लस सी है ही. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर. अब हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा sin 4x/4 माइनस sin 6x/6 प्लस, ये हमारा आंसर हो गया इसका. आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, है ना. देखो कुछ नहीं करना, मैंने कोस को यहाँ लिया, आप साइन को भी ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे, स्क्वायर और 1 ले लिया मैंने, क्योंकि अगर मैं कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करूँ और साइन को पुट कर दूँ तो वो cos dx dt बन जाएगा, राइट. ऐसे ही आप कोस को यहाँ रख के साइन को भी कर सकते हो. साइन क्यूब है तो उसको साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख दोगे और जो साइन आएगा उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे, पूरी टर्म कॉस में आ जाएगी, कॉस को पुट करोगे साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, है ना. तो बोथ मेथड से आप कर सकते हो, साइन को इस साइड कर लो या कॉस को कन्वर्ट कर लो, बोथ आर करेक्ट, आंसर विल कम, राइट. नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है. सिक्स्थ क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन 3 वी हैव डन, है ना. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन. sin x, sin 2x, sin 3x. Now we will do the sixth question. Sin x, sin 2x और sin 3x. ठीक है. जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में करा था एज इट इज हम सिक्स्थ क्वेश्चन में कॉस के लिए अप्लाई करा था, आप साइन के लिए अप्लाई करेंगे. देखो मैं इन दो को कंबाइन कर रही हूँ, ये अलग रख रही हूँ साइन एक्स. ठीक है. इसमें हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. ये हमारी आइडेंटिटी है 2 sin a sin b की. ठीक है. तो हमें 2 की नीड है, हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. sin x 2 sin 2x इंटू sin 3x. ठीक है जी, हो गया. अब हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. cos a minus b means cos 3x minus 2x cos x minus cos a plus b means 5x. ठीक है जी. अब साइन के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, sin x cos x माइनस sin x cos 5x dx. ठीक है. अब देखो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin a cos b 2 sin a cos b. अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. ठीक है. अब 2 sin x cos x तो होता है sin 2x. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 cos a sin b की प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 cos a sin b. क्या होती है 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b. ठीक है. दिस वी विल अप्लाई हेयर, हम ये यहाँ अप्लाई कर देंगे.
ये cos a मान लिया, इसको sin b मान लिया। 2 cos a sin b की होती है sin a plus b, मीन्स sin 6x माइनस sin 5 minus 1 4x dx, पूरे के आउटसाइड आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे। 1/2 ऑलरेडी था तो ये हो गया 1/4। sin 2x, sin 6x और sin 4x, sin 2x माइनस sin 6x और माइनस sin 4x था, बाहर माइनस है इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस sin 4x dx। आई थिंक यही था, चेक कर लेते हैं। देखो ये 1/2 बाहर लिया था, sin 2x माइनस sin 6x और माइनस माइनस प्लस sin 4x, राइट। अब हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/4 आउटसाइड, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x और 2x का 2 बाय में, sin 6x का माइनस माइनस प्लस 6x का 6 बाय में, sin 4x का माइनस cos 4x और 4x का 4 बाय में प्लस c। ये हमारा आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड टू ऑल। So today we have discussed 6 question here, right? So tomorrow we will discuss more question of this exercise. Thank you very much for watching this video.